السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ادیان میں الگ الگ صورتوں میں الگ الگ کیفیات کے ساتھ فرض قرار دیا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے روزے کی مقصدیت کو، روزے کے مقصد کو واضح کرنا چاہتی ہوں۔ روزے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام فرض کیا گیا، اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے دیگر ادیان پہ فرض کیا گیا، تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اما سلکتا طریقا ذا شوکن، کیا آپ ایسے راستے پہ نہیں چلے ہیں جو کانٹے دار ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے پوچھا فماذا فعلت، آپ نے کیا کیا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹا، یعنی ایسے راستے پہ جو کانٹے دار ہو، تو میں نے اپنے دامن کو سمیٹا، اس کے بعد میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل کھڑا ہوا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی تقوی ہے۔ تقوی ان راستوں کو اپنانے کا نام ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور ان راستوں سے بچنے کا نام ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کو بجا لانے کا نام ہے۔ تقوی حرام کردہ امور، فواحش اور منہیات سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی یہ دل میں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی وہ ہے جو ایک خاتون صحابیہ کو جب ان سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں اس طرح سے پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سنسار کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیا، اور بار بار جاتی رہی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑا کہ کیا یہ صحیح دماغ ہے، کیا اس کو اس کی سزا کا پتہ ہے، زنا کا کی کیا سزا ہے؟ تو تقوی اسے کہتے ہیں۔ تقوی وہ ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا پاؤں سڑ گیا، ایسا سڑ گیا کہ اطباء نے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کا زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا، اس لیے اسے کاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کاٹ دو۔ تو اس وقت میں بے ہوشی کی دوائیں نہیں تھی، اس وقت میں سیدھے کسی آری سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو ڈاکٹر نے ان کو شراب پیش کی، طبیب نے، کہ تھوڑا سا پی لو تاکہ درد کا احساس کم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے درد کے احساس کو کم کرنے کے لیے شراب کو اختیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حرام کام کو اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں برداشت کر لوں گا، اور قرآن کی آیات پڑھتے رہے، اور ادھر طبیب جو ہے ان کا پیر کاٹتا رہا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقوی، کہ درد کو کم کرنے کے لیے شراب اور اللہ تعالیٰ کے حرام امور کو اختیار نہیں کیا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں؟ صوم کا معنی ہے رکنا۔ صوم کہتے ہیں کھانے پینے اور خواہشات سے رک جانا، اسے صوم کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں۔ صوم میں اللہ تعالیٰ
सौम के अंदर, रोज़े के अंदर हम उन उमूर से बचते हैं जो हलाल है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता है घर में, चाहे तो हम खा सकते हैं, खाना मौजूद होता है, चाहे तो हम पी सकते हैं, किसी को मालूम भी नहीं हो, लेकिन हम इसलिए नहीं खाते पीते हैं कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। गोया कि रोज़ा हमें इखलास सिखाता है, इखलास की ट्रेनिंग देता है कि कोई भी अमल खालिस अल्लाह ताला के लिए किया जाए। अगर कोई इंसान दुनिया में लोगों के सामने अपनी इज्तिमाई जिंदगी में दीनदार है, नेक अमल इख्तियार कर रहा है, सलात अदा कर रहा है, लेकिन वो तन्हाई में इबादत में कोताही कर रहा है, अगर तन्हाई में वो बुराई कर रहा है, इसका मतलब कि वो लोगों के डर से कर रहा है, वो नेक अमल लोगों के डर से कर रहा है, अल्लाह ताला के डर से नहीं कर रहा है। तो ये जो रोजा है ये हमें इखलास सिखाता है, अल्लाह ताला के लिए इबादत को करना सिखाता है, अल्लाह ताला के लिए डरना सिखाता है कि जब हम तन्हाई में अल्लाह ताला के डर से हलाल कामों को छोड़ दे रहे हैं, खाना पीना छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हम तन्हाई में अल्लाह ताला के डर से हराम काम करने की जुर्रत करेंगे, हराम काम करने का सोचेंगे? मजीद ये कि क्या एक मोमिन जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए इन अय्याम में, इन मखसूस अय्याम में हलाल कामों को छोड़ दे रहा है, हलाल चीजों को छोड़ दे रहा है, तो क्या उस मोमिन से तवक्को की जा सकती है कि वो मोमिन दीगर अय्याम में या फिर इन अय्याम में हराम कामों को इख्तियार करे? तो ये रोजा हमें नफ्स को कंट्रोल करना सिखाता है कि जिस तरह से हम हलाल कामों से, हलाल खाना पीना से हम इन अय्याम में रुके रहते हैं, उसी तरह से हम दीगर अय्याम में हराम कामों से और इन अय्याम में भी हराम कामों से बचे रहें। हम दुनिया में देखते हैं कि ज्यादातर जो बुराइयां हैं वो भूख की वजह से है, वो खाने की वजह से है। तो एक तरह से अल्लाह तबारक व तआला भूख में मुब्तला करके हमें उन बुराइयों से बचाना चाहता है। इसी तरह से भूख में मुब्तला करके अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे जैसे दूसरे भाई जो गरीब है, मोहताज हैं, उनके दर्द का एहसास दिलाना चाहता है। और ज्यादा खाना पीना, ज्यादा मेल मिलाप और ज्यादा गुफ्तगू इंसान को अल्लाह ताला के रास्ते से भटका कर मुख्तलिफ रास्तों पे ले जाती है, मुख्तलिफ उन रास्तों पे ले जाती है जो जहन्नम की तरफ जाता है। और जब इंसान कम खाता है, जब इंसान रोजे की हालत में होता है, तो ऑटोमेटिक खुद से इंसान बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता है, बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिलता है और अपना वक्त अल्लाह ताला की याद में गुजारता है, अल्लाह ताला की जिक्र अज़कार में करीम की तिलावत में गुजारता है। इसलिए कि इन अय्याम में अल्लाह ताला ने इन नेकियों का सवाब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और जो इंसान रोजा रख कर भी बुराइयों से, फवाहिशात से, गलत गुफ्तगू से, गीबत चुगलखोरी से बाज नहीं आते, तो उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबह। अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपना खाना और पानी छोड़ दे। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लैसा सियामु मिनल अक्ल व शुर्ब इन्नमा सियामु मिनल लग़्व व रफ़थ। रोजा भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, रोजा लग़वियात, बेफायदा चीजें, बेफायदा अमाल और हराम और बुराइयों को तर्क करने का नाम है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तुसाब्ब व अंत साइम फ़इन सब्बका इंसान फ़कुल इन्नी साइम, कि तुम रोजे की हालत में गाली नहीं दो, और अगर तुम्हें कोई इंसान गाली दे तो तुम कह दो कि मैं रोजे से हूं। गोया कि रोजे की हालत में मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे रब ने हमें इससे मना किया है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता है, निकाह की ताकत नहीं रखता है, तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि अस्सौम जुन्ना, कि सौम ढाल है। जिस तरह से ढाल
दुश्मनों से बचाता है, उसी तरह से रोज़ा बेहयाइयों से, फवाहिश से और बुराइयों से बचाता है। गोया कि एक इंसान जो निकाह की ताकत नहीं रखता है, अगर वो रोज़ा रखे तो वो फवाहिश के, बेहयाइयों के करीब नहीं जा सकता है। अगर हम तमाम इबादत पे गौर करें तो उन तमाम का मकसूद तकवा है। कुर्बानी को देखें, कुर्बानी के बारे में है कि अल्लाह ताला को तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुँचता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को वलाकिन यनालहु अत्तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह ताला को तुम्हारा तकवा पहुँचता है। अब सवाल ये है कि क्या ये तकवा, ये डर जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अत्तक़वा हाहुना, तकवा यहाँ है, तो क्या ये डर ये सिर्फ मखसूस अय्याम में मतलूब है या ये तकवा और डर हमेशा मतलूब है इंसान से? ज़रूरी सी बात है, एक बंदे मोमिन से तकवा ये तमाम उम्र मतलूब है। और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला सालों भर का ट्रेनिंग देता है बंदों को और मश्क कराता है। तो ज़रूरत है कि हम अपना मुहासबा करते रहें और जिस तरह से इन अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बकसरत करते हैं, अल्लाह का अज़कार करते हैं और गीबत, चुगलखोरी और दीगर बुराइयों से बचते हैं, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। उसी तरह से दीगर अय्याम में भी हम इन उमूर से बचते रहें, इसलिए कि यही मकसूद है रोज़ा से। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है रोज़ा के ज़रिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इखलास पैदा करे। अल्लाह ताला हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर तकवा की सिफ़ात पैदा करे और अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइब और परेशानियों से बचाए और हम में जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर करे। आमीन तुम आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।